from a very young level to he's still young. Looks he's just grade his hair to look senior. ये होता है ना जिस तरह कई लोग वकील जो है वो अपने बाल जान के सफेद करवा लेते हैं ताकि वो सीनियर लगे और फीस ज़्यादा लें तो ये माशाल्लाह he travels a lot, he travels abroad, ICO के साथ इन्वॉल्व हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और PGO के चीफ एडिटर हैं। तो माशाल्लाह ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम और पब्लिकेशंस काफ़ी सारी कर चुके हैं और बहुत अच्छा इनका करियर अब तक रहा है। हम आपके क्लास फेलो हैं, हमसे जूनियर थे कई में, तो वी आर ब्लेस्ड दैट यू आर हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you very much, Professor Nadeem, for very overwhelmed कि आपने इतनी सारी बातें कह दी probably. Corneal topography is a difficult topic, or probably I am learning it as well. So I think internet is one of tools for everybody. So इसमें there's a Syrian refractive surgeon, Sanjay. Mazen Sanjay, he's got a very good presentation on topography. So I've taken slides from his presentation, but I think if we can understand even those, it's going to be pretty useful. I've just kept it as just an understanding of a simple topography report rather than going into different keratometry machines and everything, because that can take another topic. So the 12 points, if we take on the topography and try to analyze it into 12 stages, I think that's easier. It's a very quality standard, first thing. Then you go on to K-max, which is the highest K reading on the topography. Then you go on to the thinnest location, and then you find out where the thinnest location is from the center. Then you see the astigmatism, what is present, and how much different is it from your manifest astigmatism on refraction. Then this shows you the quality of the scan, and this is the Q value. Then you take the sagittal curvature. Then you go on to the elevation, the front, then to the back elevation, then to pachymetry. Then on the pentacam there is the thickness profile. This shows you the corneal thickness, spatial profile, how the corneal thickness is changing from the periphery to the center, from the center to the periphery, sorry, opposite way around. So, and then the inter-eye corneal asymmetry. So these are the 12 points. We'll go through all of them and probably at the end have an understanding of what it is, and in the end we'll probably define what angle kappa is and how angle kappa can actually cause problems in interpretation or findings on a topography machine. When you set up the whenever you set up the pentacam machine, you can see in this area these are black dots which define areas which have not been clearly captured by the tomogram or the machine, and they are actually being extrapolated. So what you can do is you can have a 9mm zoom area which you can analyze, which gets rid of those black lines. Then you can see the color coding. Whatever you see in this area, that tells you, so it is going from up to 75 micrometer, and this is either you can choose the absolute scale, which is a normal database which they're using. Then you can have steps of 0.25 diopters, or you can have steps of 0.5 diopters and reference of 1 diopters, which are core slab. ये उसी तरह से CT scan में आपके slices हैं 3mm, 5mm. If you have bigger slices, you miss out things. जिस तरह CT में. So see, the color coding is with the absolute scale. This is with 0.25, जिसमें details become more. देखें color coding more defined होना शुरू होगी. When you go on to 0.5, color coding और चली गई है, और 1 पे चले जाए तो बिल्कुल चली जाए. So you set it at an absolute scale, so that tells you the relative. Otherwise, you can, for good detail, you can set it to 0.25 or a 0.5 scale.
Similarly, you have the elevation map. उसकी भी settings you can set at to reference minimum of 2.5 micron, and then to a 5 micron, 10 micron, and 25 micron. So this is a reference of 5, this is 10, and this is a 25 micron. So we use this 5 micron scale to see the elevation map. Elevation map का कोई idea है लोगों को? Best fit sphere का कोई idea है? वो मैं पहले बता दूं या साथ साथ? भी समझे कि सब गूंगे मैंने। ठीक है, मैं भी ऐसे ही था थोड़ी देर पहले। नजर आ रहा है। Elevation maps are based on elevation profile. Role of elevation based approach है, in 5% of the cases there is significant asymmetry and that the less involved eye initially presents with a normal जो एक sagittal curvature है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है? The new elevation based approach has increased sensitivity to 75%, ठीक है? ये projection based है, ठीक है? इसमें आप rings देख रहे हैं, the rings are getting and this is mild और ये ऊपर आपको mild देखें इसके oval miles नजर आ रहे हैं, you can see this, ये आपको projection placido based आपको दे रहा है, ठीक है? इसमें elevation map should actually be called as a better term is an elevation subtraction map, ठीक है? So since we actually do not look at the actual elevation of data, जिस तरह आपके नॉर्मल नक्शे नहीं हो, जो आपके प्लॉट जो आपके नॉर्मल मैप्स होते हैं वो those are elevation maps as well. They tell you कि ये जगह कितनी ऊंची है और कितनी नीची है, ठीक है? So for most clinical situations, a best fit sphere gives the most useful qualitative map. Since the eye is an aspherical prolate surface, यानी कि peripheral में थोड़ी सी flat होती जाती है, central 8 to 9 millimeter yields a reference sphere that allows for a subtle identification. पहले मैं इसकी तस्वीर दिखा लूँ फिर उससे आइडिया हो जाए। अगर ये हमने डिफाइन किया कि 7 to 8 millimeter पे आप बेस्ट फिट स्फीयर लेकर आ रहे हैं, so you imagine a sphere which you put on the cornea और वो बेस्ट फिट स्फीयर आप निकालते हैं कि ये कितना आ रहा है, so that is a normal sphere, बेड से उसको आप डिफाइन कर देते हैं ये कितने मिलीमीटर का उसका रेडियस है और उसकी जो डायमीटर उसका कितना रेडियस और डायमीटर डिफाइन कर देते हैं बेस्ट फिट स्फीयर का, so that gives you this area. इसके ऊपर जो चीज नजर आएगी that is going to be higher than this, जो रेड कलर में नजर आएगी, इसके नीचे जो नजर आएगी that is going to be उसके it is going to be below actually this. तो केरेटोकोनस में क्या होगा, जो एरिया आगे बाहर निकलेगा तो वो एलिवेशन से it is going to go above, so it becomes redder in that area. लेकिन हम जिस वक्त बाद में देखेंगे सामने से if you put a light in front, अगर आप टोपोग्राफी मशीन से खींच रहे हैं, पिक्चर खींच रहे हैं और आपकी अगर थोड़ी सी मशीन थोड़ी सी ऑफ सेंटर हो गई है तो जो वो रीडिंग्स दे रहा है वो सारी खराब हो जाएंगी, ठीक है? बट ये एलिवेशन मैप इतना खराब नहीं होगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक फ्रॉम अ रेफरेंस. इसके ऊपर वो पॉइंट ऑफ सेंट्रेशन विल चेंज बट इसकी वो नहीं चेंज होगी एलिवेशन मैप. तो एलिवेशन बेस्ट फिट स्फीयर कैन बी a best fit sphere or it can be a toric ellipsoid भी होगा, यानी कि उसकी शेप थोड़ी सी कॉर्निया की शेप है, तो that is another thing which can be used. Excuse me sir, जी सर इसमें सेंटर कहाँ लेंगे स्फीयर का? सेंटर स्फीयर का आपका गुड क्वेश्चन है, चूंकि कॉर्निया के अंदर जिस वक्त स्कैन आएगा उसके अंदर आप मैं भी दिखाता हूँ आपको डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. एक प्यूपल सेंटर है, एक आपका फिक्सेशन सेंटर है, ठीक है? जो ये बेस्ट फिट स्फीयर है ये आपका प्रॉब्ली जो आपका अगर प्यूपल सेंटर उसके ऊपर ये फिट हुआ है, लेकिन इट इज ये अभी आएगा ना उसके ऊपर, तो ये एक्चुअली जो स्कैन हुआ होता है उसके ऊपर यू कैन सी वेयर इट इज. इसी को मैं स्कैन करता हूँ. ये भी आता है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ. इसका आइडिया हो गया बेस्ट फिट स्फीयर का आपको.
elevation map is going to be based on a best fit sphere. तो जब आप settings में जाते हैं तो ये आपका elevation map जो आ रहा था, तो this is what you're seeing. इसका मतलब है कि this is -5 above, ये +10 इधर आ रहा है, ये कलर ये दिखा रहा है आपको, जो उसके कोडिंग उसने ये की हुई है कि येलो इज एक्चुअली इन दिस एरिया, और इसमें देखें जो प्लस जा रहे हैं वो एक्चुअली इसने रेड में लेके गया है, और येलो में जो जा रहे हैं इसमें ये नीचे की तरफ जा रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज शोइंग इन दिस एरिया. Excuse me, जरा किसी तस्वीर में हो जाए. As we see the periphery, the periphery is expected to be flatter and should show lesser values in comparison to the center. क्योंकि in this picture we are seeing a two-dimensional, हमें 3-dimensional नहीं नजर आ रहा. तो वो figures से उसने बताया है कि जो higher figures हैं वो center की तरफ हैं, lower figures periphery की तरफ हैं. ठीक है. Otherwise the cornea is thicker in the periphery and central thickness is lesser. नॉर्मल जो एनाटॉमी है वो तो ये है ना. अब ये बताएं कि अब ये इस तरफ ये रेड जोन दे रहा है और टेक्स्ट 26 आ रहा है, वो प्रॉब्ली एज इफेक्ट आ रहा है उसका, प्रॉब्ली जहां पे एज पे जो रीडिंग ली है ना उसकी वजह से आ रहा है. मेरे ख्याल में इसका सेंटर भी आउट है. अगर आप देखें इसका सेंटर ये देखिए, इसके ऊपर ये दो चीजें बता रही हैं. ये थिनेस्ट पॉइंट आएगा, ये प्यूपल इसने दिया होगा भी नहीं, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये इसका पॉइंट ऑफ फिक्सेशन आ जाएगा. ये इसका पॉइंट ऑफ, ये थिनेस्ट पॉइंट है, ये जो क्रॉस होता है वो इसका पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है. ये इसके ऊपर दे देता है हर स्कैन के ऊपर. इट विल, अगर इसके ऊपर आप वो भी देना चाहेंगे जो एपेक्स है इसकी, वो भी दे देता है साथ कि ये कौन सी आ रही है. मतलब कहने का ये भी, ये सारी वो चीजें हैं जो इसकी एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस है कि आप इनको सबसे पहले देखें. जिस तरह हम ओसीटी में, विजुअल फील्ड में, सब चीजों में देखते हैं कि पहले आप क्वालिटी देखें स्कैन की, वो क्वालिटी सही हुई है कि नहीं. वो इधर आ रही है, वो क्यू वैल्यू में वो शुरू में दे रहा है, वो ये खुद ही दे देता है, ये दे रहा है, वो ये दे रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये ओके है. उसने ओके कह दिया, वो ओके कह दिया, बाद आपको देखने की जरूरत नहीं. वो नहीं देखने की जरूरत. अच्छा. जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप कह रहे हैं कि साइडों से जो पिकअप नहीं कर रहा, वो चीजें इसमें आ जाएंगी. वो इसमें दे रहा था, इसका जो था ये इसमें था, ये देखिए, ये अगर रीडिंग सही नहीं है तो ये डॉट, काले डॉट आना शुरू हो जाएंगे. अच्छा. तो ये बता रहे हैं कि इसने एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है मशीन है, तो इसीलिए उसका थोड़ा जूम ले लेते हैं. 9 मिलीमीटर जूम उसको दे देते हैं, तो वो सेंटर को आप पूरा 10 मिलीमीटर पे नहीं जाते, 9 मिलीमीटर जूम दिखा लेते हैं कि जो एजेस पे जो इफेक्ट आ रहे होते हैं वो ना आए, वो कैंसिल आउट हो जाए. वो कैंसिल, वो आपने एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली. ठीक है, तो उसको आपने जूम आउट कर दिया. ठीक है. कॉर्नियल टोपोग्राफी पूरी दुनिया थोड़ा उसमें कंफ्यूज इनिशियली बंदा होता है, लेकिन इससे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है ये जो इसने बनाई है. इसमें लेट्स सी इन दिस बेस्ट फिट स्फीयर का आइडिया हो गया, उससे कंफ्यूज तो नहीं हो गए. जो उसकी पिक्चर दोबारा दिखा दो एक बार. समझ आ गई है कि जो चीजें उसके नीचे हैं वो लाइटर कलर, वो लाइटर कलर में है, जो सर्कल से बाहर है वो डार्कर कलर की रेडिश की तरफ होंगे. और केराटोकोनस को उससे हम समझ सकते हैं कि since the keratoconus will project further out from the best fit sphere, therefore it will show more of a red color rather than green or yellow. Exactly. क्योंकि people actually कहते हैं कि आप ये जो सर्जिकल कर्वेचर है इसको ना देखें. एक्चुअली यू शुड स्टार्ट सीइंग द एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन पहले देखें, एंड देन यू गो ऑन टू द अदर एलिवेशन मैप उसके हिसाब से. ये आपकी द कलर कोडिंग कैन बी चेंज कि कितने स्टेप्स पे इफ यू जी being a totally practitioner, Ireland, I would like to ask that whether we can numerically calculate the बेस्ट फिट स्फीयर. इसमें कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग की रीडिंग आ जाती है. हाँ, वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारी आ सकती है. कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग की लगा है. ये देखिए, वो हमें डिसाइड करना था कि व्हाट थिंग्स आर बीइंग शोन. ये देखिए, शोइंग द थिनेस्ट लोकेशन. ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये आपको थिनेस्ट लोकेशन बता रहा है. ये आपको बता रहा है 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 7, और ये आगे चल रहा है. ठीक है. उसके बाद शो दी एपेक्स. ये अगर आपको व्हाइट नजर आएगा तो प्रॉब्लम दिस इज शोइंग दी एपेक्स इसकी कहां पे आ रही है. सो विद दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि एक्चुअली व्हाट यू आर सीइंग, और दिस इज इन द सेटिंग्स व्हाटएवर यू वांट. ये आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं मशीन में, एंड दैट कैन गिव यू द रीडिंग.
ये क्वालिटी स्कैन उसने ओके कर दी है। इफ द क्वालिटी इज नॉट ओके तो आपको ये येलो हो जाएगा, ठीक है, येलो हो जाएगा और इसमें वैलिड डाटा वो कह रहा है कि 33% है, कम आ रहा है, तो दैट टेल्स यू कि द वैल्यूज आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि K-max। So what is K-max? K-max is the highest keratometry reading at any point on the thing. So the K-max should be less than 47.2 in a normal patient. तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस पेशेंट की K-max कहाँ पे है, एंड द K-max अगर आपने उसको शो करना है तो उसने देखे साथ ये पॉइंट भी दे दिया उसने कि दिस इज दी K-max का, इसका सिंबल यहाँ पे डायमंड लगा होगा तो दैट विल टेल यू वेयर इट इज। फिर थिनेस्ट लोकेशन कहाँ पे है, बिकॉज थिनेस्ट लोकेशन इन केराटोकोनस मूव्स इंफीरियरली टेम्परली, ठीक है, तो उसमें ये देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नॉट अ डिफिकल्ट टर्म। एक्स एक्सिस वाई का मतलब नीचे चला गया, -0.22 का मतलब कि उसका थिनिंग नीचे चली गई, और वाई एक्सिस वो टेम्परली चली गई है, ये नेजली चली गई है, ये उससे शो हो जाएगा कि थिनेस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे आ रहा है। सर उसमें जरा जी पीछे वाले, हाँ जी, इससे जब ऊपर जाइए पैकी एपेक्स, इसको भी जरा थोड़ा सा बताइए। पैकीमेट्री एपेक्स ये है कि आपका एक है थिनेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, और एक एपेक्स ऑफ कॉर्निया जो आपको लग रहा है मशीन जो निकाल दी कि एपेक्स ऑफ कॉर्निया एक्चुअल कहाँ पे होना चाहिए, तो वो क्या है, जो दोनों ये थिनेस्ट लोकेशन है वो एपेक्स चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से जब आपका वो आ जाएगा। जो मशीन अपने हिसाब से एपेक्स निकालती है वो इसने ये दे देगी कि ये आपका एपेक्स है और ये इसका थिनेस्ट पॉइंट आता है उसके हिसाब से, ठीक है, तो वो दो उस लिहाज से। और प्यूपिलरी सेंटर आपका ये मशीन दे रही है, और इसी के साथ विल सी एट द एंड के एंगल कैपा भी इससे निकल आता है कि प्यूपिलरी सेंटर आपका फिक्सेशन पॉइंट और प्यूपिलरी सेंटर में जो डिफरेंस आएगा दैट इज एक्चुअली गोइंग टू टेल यू कि एंगल कैपा आपका कितना आ रहा है, और उसकी वजह से आपकी ये सारी डिविएट हो जाती है। तो आपने देख लिया कि एस्टिग्मेटिज्म व्हाटएवर इज कमिंग ऑन टोपोग्राफी शुड मैच, should be less than 1 diopter from the manifest जो आपकी आती है refraction में, it should be less than this, and the angle should be less than 15 degree का mismatch नहीं होना चाहिए, less than 1 diopter 15 degree, ठीक है। इसके बाद this shows the Q value कि उसकी कॉर्निया की कर्वेचर क्या है, ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज इसकी आ जाती है। फिर हाई रिस्क अगर थिनेस्ट लोकेशन इज लेस देन 470 माइक्रोन, आपकी अगर पैकीमेट्री की रीडिंग less than 470, so that puts up red flag, और thinnest location अगर vertically है if it is more than 1 millimeter away from the center, यानी कि अगर आपका कॉर्निया का सेंटर ये है और आपका thinnest point has moved down 1 millimeter, so that tells that is abnormally down, so that is telling you कि ये पैकीमेट्री रीडिंग is the location is off, ठीक है। इसमें इसकी मॉडरेट वैल्यू रिस्क है अगर if it is 0.5 to -1 डायरेक्ट। So whenever you evaluating, you always exclude contact lenses, तो नहीं लगे हुए पेशेंट को। misalignment and large angle kappa, misalignment और large angle kappa हम आखिर में देखेंगे। dry eyes, corneal scar और exclude previous surgery, ठीक है। इसके बाद है anterior sagittal map। anterior sagittal map, this is a classical bow tie pattern आ रहा है, ठीक है। इसमें red area is showing you this, और उसके ऊपर concentrically है, लेकिन इसके ऊपर आपको These are the 3 millimeter zone 5 and 7, लेकिन ये जो आ रहा है जो dotted line है that is the pupillary center आ रहा है, ये उसकी जो circle आ रहा है ये thinnest location आ रही है उसकी, ठीक है। So this is the same thing जो आपका with the rule astigmatism जो red है वो vertically है, और इन दोनों का आपस में देखिए इससे एक एक्सिस भी बनेगा, ये और ये एक एक्सिस भी बन रहा है दोनों का, ठीक है। दो एक्सिस बनेगा, दैट कैन बी स्क्यूड टू द राइट और लेफ्ट हो सकता है, और जितना उसका एंगल है दैट एक्चुअली टेल्स यू के वेयर इट इज गोइंग। सो एंटीरियर सैजिटल मैप कैन बी राउंड और इट कैन बी ओवल, ठीक है, और इट कैन बी अ सुपीरियर स्टीप। आपको सिर्फ एक एरिया का नहीं, मैंने एक स्कैन देखा तो उसमें एरिया आपको सिर्फ सुपीरियर स्टीप नजर आ रहा था, स्टीपनिंग है लोकलाइज, लेकिन और कुछ नहीं आ रहा उसके ऊपर। एक इंफीरियर स्टीप है, फिर एक इरेगुलर है, ये है जिनमें एंटीरियर में आपका ओवर नहीं है। फिर आपकी सेकंड ये राउंडेड शेप्स है ज्यादा। उसके बाद है आपकी बो टाई शेप्स। बो टाई है, एक सिमेट्रिकल बो टाई है, यानी कि अबव एंड बिलो इज द सेम, ये सिमेट्रिकल बो टाई है।
इसका विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस है, रेडियल एक्सिस इसका बीच में जाके टूट गया एंड इट इज गोइंग एट एन एंगल। फिर इसके बाद नंबर 8 पे एसिमेट्रिक बो टाई, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर का डिफरेंस आ गया, सुपीरियर बड़ा है, इंफीरियर सुपीरियर इज स्मॉलर एंड इंफीरियर इज बिगर। इसी तरह अगले में आ गया और उसके बाद द सेम थिंग इज स्क्यूड वो आ गई। उसके बाद सम आर मिसलेनियस शेप्स सच एज बटरफ्लाई, क्लॉ शेप, और इसके बाद जंक्शनल, ये सारी आपकी पेलुसिड मार्जिनल डीजनरेशन या जो इंफीरियर केराटोकोनस उसमें ये चीजें आपकी ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। सो एंटीरियर सैजिटल मैप है ये, अगर सिर्फ कोनिकल है और सिर्फ सेंटर में है तो द थिंग विल बी ओनली राउंड और ये ओवल आ जाएगा, ठीक है। के मैक्स शुड बी लेस देन 47.2। ये सुपीरियर स्टीप है एंड दैट इज इंफीरियर स्टीप, एंड ये आपका बोटाई एबनॉर्मल बोटाई है जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो इसमें आपने डिफरेंस देखना है। इंफीरियर जिस तरह आपका विजुअल फील्ड में आता है कि सुपीरियर एंड इंफीरियर एसिमेट्री, तो व्हेनेवर यू लुकिंग एट दिस, सो ये जो एसिमेट्री इसने निकाली है, ये इंफीरियर सुपीरियर एसिमेट्री, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो द सुपीरियर इंफीरियर एसिमेट्री शुड बी लेस देन 2.5, ठीक है, 2.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इंफीरियर सुपीरियर शुड बी लेस देन 1.5, ठीक है। तो ये दो जो एसिमेट्री आ रही है, अगर इफ दे आर मोर देन 2.5 डायमीटर, अगर सुपीरियर बड़ा है तो 2.5 का, और अगर इंफीरियर बड़ा है तो फिर 1.5 का अगर डिफरेंस है तो दैट इज significant in these cases. So these will tell you if the patient is normal or high risk or low risk. So ये skew shaped है, bow tie है with a radial axis deviation, और ये इसमें asymmetric bow tie है. This is SB is symmetric bow tie and AB is asymmetric bow tie pattern. और इसमें जो radial axis है that should be less than 22 diameter. ये जो इधर से मूव कर रहा है, if it goes at 90 degree, तो that means कि ये axis is skewed abnormally, ठीक है। तो ये आपके बो टाइज हैं जिनको आपने देखना है कि एक तो आप सेफेरिकल भी देखते हैं, फिर आपने देखना है कि नॉर्मल बो टाई है या एबनॉर्मल बो टाई है, ये फिर आपके स्पेशल शेप्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इरेगुलरिटी आ जाती है which can be due to scar, previous surgery या ट्रीजियम आ जाता है, ठीक है। The patients which are high risk for refractive surgery, उनमें जिसमें रेडियल एक्सिस, स्क्यूड रेडियल एक्सिस ग्रेटर देन 22, इसमें स्पेशल शेप्स आ जाएंगी, दोज आर एबनॉर्मल, K-max मोर देन 50 डायमीटर्स, बेशक उसके अंदर इफ द राउंड और ओवल और सिमेट्रिकल बो टाई, बट मोर देन 50 K-max है, दैट गिव्स यू। इसके बाद ये आपके इंफीरियर सुपीरियर अगर है तो 1.5 डायमीटर का डिफरेंस और K-max लेस देन 47.2, ठीक है। इसमें कोई आइडिया हो गया आपको कि हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं। एक थिनेस्ट लोकेशन देख ली है, फिर इसके y कोऑर्डिनेट देख लिया कि थिनेस्ट लोकेशन का y कोऑर्डिनेट क्या था, वो एबनॉर्मल है, फिर Q वैल्यू देख ली है, ठीक है। और फिर एंटीरियर सैजिटल कर्वेचर देख लिया कि हाउ दैट इज गोइंग। इसके बाद when we come to elevation maps, उसकी डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। या तो इसका ये सेंट्रल आइलैंड आता है जो नॉर्मल में आ रहा होता है, और the other thing which can happen is an hourglass shape, ठीक है। ये hourglass shape is coming in this area and this is showing the normal astigmatism, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि normally whenever you seeing this, so whenever we see astigmatism, ये इसमें जब आप देखेंगे तो ये उल्टे आ रहे होते हैं, जो sagittal उस पे कर्वेचर पे आ रहा होता है, whenever the colors are usually the opposite way around, this वो जब आती है तो we see on that. ये hourglass था इसका, और इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज दी हुई। इसके अंदर आप एस्टिग्मेटिज्म का रेडियल एक्सिस नहीं निकालते because it doesn't come in this. Whenever it is astigmatic, it usually produces these tongue shaped patterns, ठीक है। तो जब भी आएगा तो इसमें ये tongue shaped pattern आएंगे on a best fit sphere, ठीक है। तो इसमें वही एक्सक्लूड मिसअलाइनमेंट, लार्ज एंगल कैपा एंड कॉर्नियल डिफॉर्मिटी। ये बेस्ट फिट स्फीयर पे है, इसको अगर टॉरिक इलिप्सॉइड पे ले जाए तो दैट एक्चुअली गिव्स यू अ बेटर रीडिंग, बट बेस्ट फिट स्फीयर में इफ द एंटीरियर एलिवेशन इज मोर देन 7.7, अगर उससे ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 7.7, तो देन
it is high risk, और अगर posterior 17.7 से ज़्यादा that is high risk, और hypermetropic में 6.5 और 27.8, यानी कि तो because usually आपका जो form frust keratoconus है, which is latent है या अभी it is not being manifest, वो posterior surface पे ज़्यादा आता है, और जितने आपके आते हैं प्लेसिडो डिस्क, जिस तरह अगर आप प्लेसिडो डिस्क से देखेंगे तो आपके अगर फॉर्म फ्रूस्ट में आपका नॉर्मल आ रहा होगा, ठीक है, आपके इंटीरियर कर्वेचर दिखा रहा और कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें बिकॉज यू आर सीइंग द बैक सरफेस, तो बैक एलिवेशन अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो दैट विल टेल यू कि दिस इज अ फॉर्म फ्रूस्ट केराटोकोनस आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा आता है कि बेस्ट फिट सफियर है, बेस्ट फिट, ये बेस्ट फिट टॉरिक एलिप्सॉइड पे डाला हुआ, ठीक है, जिसके रेफरेंस जो था आपका, आपने गोल सफियर बनाने की बजाय उसको थोड़ा सा टॉरिक एलिप्सॉइड कर दिया तो चेंज हो जाता है, तो इसमें एलिवेशन वैल्यूज आर इसमें एक ही रहती है, सेंट्रल 5 मिलीमीटर को आप स्टडी करते हैं, एंड इंटीरियर एलिवेशन अगर लेस देन 12 है तो दैट इज सिग्निफिकेंट, एंड पोस्टीरियर लेस देन 15 है तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट फिट सफियर और टॉरिक में, अगर आप बेस्ट फिट सफियर याद करें तो प्रॉब्ली इट्स इजियर, टॉरिक उसको बीच में ना डालें। यूजली हम ज्यादा में आप बेस्ट फिट सफियर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका थिकनेस मैप, सो व्हिच इज द पैकीमेट्री मैप। सो पैकीमेट्री मैप में व्हाट यू सी इज कंसेंट्रिक, जो नॉर्मल आती है उसमें आपको एक कंसेंट्रिक जोन्स नजर आती है, सेंटर है, फिर उसके बाद पेरिफेरी है और पेरिफेरी है, एंड एज यू गो इन द पेरिफेरी इट इज 5.34 एंड 6.77 द कॉर्निया इज बिकमिंग थिकर, ठीक है। और यही चीज दिस थिकनेस इज गोइंग टू बी शोन इन दैट स्पेशल प्रोफाइल जो है कॉर्निया का, वो इज अनदर रीडिंग, ठीक है। इसमें आप देखें थिनेस्ट लोकेशन, ये देखें, ये उसका प्यूपिलरी सेंटर है जो एपेक्स आ रहा है, ये क्रॉस जहां लगा हुआ, ये थिनेस्ट इज स्लाइटली स्क्रूड फ्रॉम दिस साइड, तो उसका आप एक्सिस देखते हैं, अगर -1 है तो इसका मतलब इट इज गॉन नेजली टुवर्ड्स दैट साइड, ठीक है। सो पैकी थिनेस्ट लोकेशन -2.3, इसका मतलब दिस इज द थिनेस्ट लोकेशन, और थिनेस्ट लोकेशन आपकी 512 पे ये दे रहा है, 504 पे दे रहा है, और इसकी इट इज स्क्यूड डाउन टू, ये सेंटर था तो इससे -2 यानी कि इट इज गॉन डाउन, क्या। So this is a specific shape in patients with pellucid marginal degeneration in which you get bell-shaped pattern. इसमें आपको देखें ये रेड जो आ रहा है, ये आपको थिकनेस के ऊपर, दिस इज एक्चुअली अ थिनिंग व्हिच यू आर सीइंग, जो आपको इसमें टोपोग्राफी में जो शेप्स आ रही थी वो फर्क थी, वो क्लॉ शेप पैटर्न आ रहा था, ये बेल शेप पैटर्न इज कमिंग ऑन पैकीमेट्री, ठीक है। ये पीछे अगर जाते हैं इस पे आपको जो उसकी सैजिटल कर्वेचर पे आ रही थी, जो स्पेशल शेप्स आ रही थी, उसमें ये जो आ रही थी दैट वाज कमिंग ऑन एंटीरियर एलिवेशन, पेलुसिड में ये चीजें आ रही थी, लेकिन जब उसका पैकीमेट्री देखते हैं तो व्हाट यू आर सीइंग इज गोइंग टू बी अ बेल शेप पैटर्न। तो पैकीमेट्री पे जो उसका आता है दैट इज अ बेल शेप पैटर्न, एंड इन केराटोग्लोबस यू गेट दिस ग्लोब और ग्लोब्यूल शेप अपीयरेंस, जिसमें कि आपका एरिया जनरली यू आर सीइंग एरियाज व्हिच इज थिन 202 216, सो दैट इज अ पेशेंट विद केराटोग्लोबस। सो इफ यू थिंक अ पेशेंट आपका बुफ्थेल्मोस का है, प्रॉब्लम बच्चों में तो करना मुश्किल है, लेकिन बड़े हो जाए तो इफ यू थिंक उसमें डिफरेंशिएट करना है तो थिनिंग आ रही है, तो दैट गिव्स यू अ पैटर्न ऑफ दिस थिकनेस रीडिंग। इसके बाद इसमें भी जिस तरह कर्वेचर में था या एलिवेशन में था, ये सुपीरियर इंफीरियर का डिफरेंस, एसिमेट्री कितनी आ रही है एलिवेशन में, जो आ रही, जो इंटीरियर जो फ्रंट एलिवेशन आ रही थी, जो कर्वेचर मैप में सुपीरियर इंफीरियर का डिफरेंस है, इसी में सुपीरियर इंफीरियर का डिफरेंस अगर 30 माइक्रोन्स should be less than 30 microns, ठीक है। ये आपके आगे थिकनेस मैप में हाई रिस्क पेशेंट वो होंगे which have got something with the thinnest location has moved downward, bell shaped है, ये इस तरह all red और dark shape आ जाता है। Moderate risk है if the superior inferior is more than 30 microns and उसकी thinnest location is -0.3। तो आपकी ये हाई रिस्क पेशेंट हमने डिफाइन कर लिया कि थिनेस्ट लोकेशन अगर आपकी 470 माइक्रोन्स है,
or if the thinnest location has moved more than 1, that is a high-risk patient. Superior radial, symmetrical radial axis है butterfly claw है D है और इसमें symmetric K is greater than 50. Elevation maps, best fit sphere greater than 12, anterior and posterior में greater than 15. और thickness map अगर dome है, bell है, ये globus shape है, that is a high-risk patient. उसके बाद this is another map which shows the thickness spatial profile, the corneal thickness spatial profile. So if you take this as 0, this is the center of the cornea, and then you're going out to 10 millimeter of the cornea. ठीक है? तो आपका thickness profile देखिए center में आपका 500 है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो thickness is going. So as you go to the periphery, your thickness is going to go more. But these are the normal zones. The 6 millimeter zone is important. और ये percentage thickness increase है. ये दो चीजें आ रही है आपकी इसके अंदर which are going to be seen in this patient. इसमें abnormal shape है. अगर if the slope tends to descend more quickly, तो quick slope अगर आ रही है किसी patient में, तो that tells you कि इसका spatial profile is abnormal. फिर इसमें है S shaped है. Initially नीचे आती है फिर ऊपर जाती है. लेकिन इसमें जो initial 6 millimeter है उसकी value S shape में ज्यादा आ जाती है. एक फ्लैट शेप है, ठीक है. पेशेंट विद कॉर्नियल थिकनेस जिनको आ जाएगी थिनिंग बुलस केराटोपैथी, जब फुक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी, उसमें ये एस फ्लैट शेप पैटर्न इज गोइंग टू बी मोर. और फिर इनवर्टेड शेप और अपवर्ड गोइंग स्लोप इज ये पेलुसिड मार्जिनल डीजनरेशन में आपकी ये चीजें आ जाएंगी. सो थिकनेस प्रोफाइल हाई रिस्क आपकी क्विक स्लोप है, ठीक है. एस शेप स्लोप है, इनवर्स एस शेप स्लोप है. तो मॉडरेट रिस्क में आपकी ये फ्लैटनिंग है लेकिन मोर देन 6 के ऊपर आ रही है, ठीक है. उसके बाद इंटर आई डिफरेंस क्या है? समरी ऑफ इंटर आई एसिमेट्री, उसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया. सो दिस इज अ स्टडी बाय गिलैटी जेडी. उसमें उन्होंने स्कोर किया 5 चीजें निकाली है. 1 2 3 4 5. अगर हर एक का एक पॉइंट दे दिया, अगर इससे ये नीचे आ रहा है तो उन्होंने निकाला a score of 3 is observed in 6 to 11% of the patients. The mean anterior keratometry is more than 0.3. यानी one right और left के अंदर difference 0.3 का, mean posterior keratometry greater than 0.1, thinnest pachymetry greater than 12 micrometer का difference हो, front elevation at thinnest 0.2 micron और back elevation at thinnest 0.5 micron. But if a score of 4 is found, less than 4% will fall in this, and a score is higher, and definitely that is inter-eye. A score of 4 to 5 is a patient with high risk of findings. Okay? So these are the 12 points in which you would look for or evaluate this. So one is if you got 1 high risk and 2 moderate risk. One high risk, this patient is not suitable. 2 moderate risk, then this is a high risk patient. 1 moderate risk patient ko, you can go for patients with superficial treatment such as PRK, or you would not go for patients with LASIK exam. इसमें अब नेक्स्ट थिंग जो आ जाएगी, व्हाट इज एंगल कैपा. और एंगल कैपा से जो आपकी बो टाइप पैटर्न है, कैन दैट बी अफेक्टेड? ये आपका प्लेसिडो इमेज नजर आ रहा है. ये आपका पॉइंट, एक आपका प्यूपिलरी सेंटर आएगा, एक आपका फिक्सेशन डिफरेंस आएगा, फिक्सेशन पॉइंट आएगा. द डिस्टेंस इन बिटवीन दोज इज द एंगल कैपा. डिपेंडिंग ऑन कि आपकी आई का रिफ्रैक्टिव एरर कैसा है, दैट इज गोइंग टू टेल यू व्हाट द एंगल कैपा इज. ये आपका अगर फिक्सेशन पॉइंट और प्यूपिलरी सेंटर देखे अगर मैच कर रहा है तो देखे कितना अच्छी आ रही है आपकी बोट आई सिमेट्रिकल पैटर्न. यही पेशेंट है. और देखिए अगर इफ यू टेक दिस, अगर ये मशीन एबनॉर्मल या फिक्सेशन अगर उसकी सही नहीं थी, योर फिक्सेशन पॉइंट एंड योर प्यूपिलरी सेंटर इधर था, फिक्सेशन पॉइंट यहां आ गया, तो यही देखे स्क्यूड हो गया ना. लेकिन क्या ये इज इट एबनॉर्मल और इट्स एन आर्टिफैक्ट? तो इस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए अगर एलिवेशन मैप आप रीड करते हैं तो दैट गिव्स यू a better understanding of what that is. So देखें एंगल कैपा, अगर dx का मतलब कि ये x एक्सिस में अगर आपकी फिक्सेशन मूव कर रही है तो पैटर्न इस तरफ होगा. Wherever the x axis, अगर x axis नेजली या टेम्परली मूव करके जिस डायरेक्शन में मूव करके ये उस तरफ स्क्यू हो जाएगी.
ये वाई क्वाड्रेंट में अगर ऊपर नीचे चला गया तो ये फिक्सेशन पैटर्न इस तरह स्क्यूड इस तरह हो जाएगी, डी प्लस एक्स दोनों हो जाएंगे तो इसमें दिस इज द पैटर्न विच यू आर गोइंग टू सी इन दोज क्वेश्चन। एंगल कैपा निकालने के लिए व्हाट यू डू इज पैकीमेट्री का सेंटर ले ले और उससे एक्स एक्सिस से देखें कि हाउ मच डिफरेंस दैट इज ऑफ द सेंटर, तो वो आपको इसमें दे रहा है कि एंगल कैपा पेंटागैम डायरेक्टली नहीं निकालना। So that is just reading, just a brief overview of how should you read. इसके बाद I can show you some actual scans और उसमें we can go together and see कि क्या चीज आ रही है। इसमें we are celebrating, like to introduce LGH is 60 years old on 29th of January, so we are celebrating 60 years. Professor Tayyib is the chairman of the thing and I'm the organizing chairman. So, like always, so invite everybody for that event. इसके बाद let's see. लेकिन ये आपके कॉलेज की हुआ जो पेंटागैम में उन्होंने निकाला हुआ दैट्स बंदे का नाम है बेलियन एम्ब्रोसो, जिसमें आपको एक्टेजिया यू कैन बी इट कैन बी एनहांस्ड एंड इट कैन बी शोन इन अ बेटर वे। इसमें आपकी ये देखें आपका बेस्ट फिट स्फीयर आ गया और बेस्ट फिट स्फीयर को आप इनिशियली चेंज करके उसके बीच चेंज नहीं करते, उसके अंदर जो सेंट्रल एरिया उसको एक्सक्लूड कर, ये अगर ये इसकी मैं इसको आपको दिखा दूं तो ये इसमें आएगा कि दिस इज द फ्रंट एलिवेशन मैप आ गया। तो इसमें बेस्ट फिट स्फीयर है जिसमें आपने जो साइडों वाला एरिया एक्सक्लूड कर लिया, सिर्फ एक्सक्लूडिंग द पेरिफेरल 4 मिलीमीटर, ये सिर्फ सेंटर वाला एरिया आ रहा है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये इसकी बैक एलिवेशन है। ये देखिए अगर आपने जो नॉर्मल रीडिंग लेते हैं तो आपको ये नजर आ रहा होता है। जब उसको सेंटर को एक्सक्लूड करके सेंटर वाला एरिया सिर्फ सेंटर वाले को एनहांस कर देते हैं, पेरिफेरी की रीडिंग्स निकाल देते हैं, तो फिर ये आपको देखिए ये एनहांस्ड नजर आता है कि दिस इज, अगर ये चीज इनिशियली नहीं भी पकड़ी जा रही थी तो अगर वो एनहांस करते हैं तो बेलियन एम्ब्रोसियो तो दैट टेल्स यू कि दिस इज एन एनहांस्ड पिक्चर ऑफ दिस, और उसका दोनों का कंपैरिजन उसने निकाल दिया। सो इफ यू गेट दिस इन द कंपैरिजन कि ये रेड जोन है, इसका मतलब कि ये एबनॉर्मल डिफरेंस, एबनॉर्मली द पेशेंट एलिवेशन इज एबनॉर्मल इन दिस पेशेंट, और इसी तरह इसमें आपने स्पेशल प्रोफाइल में भी आपका यही चला। इस पे क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल में मैं इस पे ये निकाल दें जिससे ठीक है। केराटोकोनस में आप डिफरेंट इंडेक्सेस यूज करेंगे। ये जब केराटोकोनस को देखते हैं इंडेक्स ऑफ सरफेस वेरिएशन, ये आपने देखिए क्या है, इंडेक्स ऑफ वर्टिकल एसिमेट्री कि सुपीरियर और इंफीरियर में क्या डिफरेंस है, केराटोकोनस इंडेक्स क्या है, सेंट्रल केराटोकोनस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ हाइट एसिमेट्री क्या है, सुपीरियर और इंफीरियर हाइट एसिमेट्री क्या है, इंडेक्स ऑफ हाइट डिसेंट्रेशन, उसके बाद आर मिनिमम, रेडियस मिनिमम, सैजिटल कर्वेचर और एक एब्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो दोज आर द रीडिंग्स व्हिच यू यूज, और ये टोपोग्राफिक केराटोकोनस क्लासिफिकेशन है व्हिच यू कैन सी ऑन अ पेंटागन, जिसमें उन्होंने निकाल दिया अगर आईएसवी इतनी है, केराटोकोनस इतनी है, तो दिस कम्स एज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 केराटोकोनस स्टेजिंग। क्योंकि आप नॉर्मली गलीली स्कैन में भी देख रहे थे तो केराटोकोनस इंडेक्स ही देख रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ केराटोकोनस कितनी आ रही होती है, वो सारी चीजें जो निकल रही होती हैं वो इन वैल्यूज से निकल रही होती है। दीज आर द वैल्यूज। अगर इंडेक्स ऑफ सरफेस वेरिएशन एबनॉर्मल ग्रेटर देन 31 है और पैथोलॉजिकली लेस देन मोर देन 41 है, ये वर्टिकल एसिमेट्री 0.28 और ग्रेटर देन 0.32 जो पैथोलॉजिकल रेड में है। केराटोकोनस इंडेक्स अगर 1.07 से ज्यादा है, सेंट्रल केराटोकोनस 1.03 से, रेडियस मिनिमम कर्वेचर लेस देन 8.7 है, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ हाइट एसिमेट्री ग्रेटर देन 21 और हाइट डिसेंट्रेशन 0.16 और एब्रेशन ग्रेटर देन 1। ये वैल्यूज हैं जो कि आपकी इसमें सारी काउंट कर ली। देखिए इसमें हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या चीज देखनी थी, स्कैन क्वालिटी ओके आ गई। उसके बाद आपने क्या देखना था, के मैक्स। इसका के मैक्स कितना है, बड़ा कर दो इसे मैं, ये बेहतर है अब, ठीक है, और बड़ा दो, ये देखो के मैक्स कितनी आ रही है इसकी 71.8
तो नॉर्मल आपकी कितनी होनी चाहिए थी? 47 से नीचे आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज देखनी थी आपको? थिनेस्ट लोकेशन, ठीक है। तो थिनेस्ट लोकेशन सॉरी पैकीमेट्री थिनेस्ट लोकेशन पे कितनी है? 436। तो कितना होना चाहिए था? 470, उससे ज्यादा आना चाहिए। उसके बाद आपकी उसकी y एक्सिस में कितनी जा रही है? -32 पे जा रही है, ठीक है। सो ये आपका आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि इसका एक्चुअल एस्टिग्मेटिज्म कितनी आ रही है। एस्टिग्मेटेशन इसकी आ रही है 4.6 आ रही है। एस्टिग्मेटिज्म इतनी आ रही है, एक्सिस इतना आ रहा है। ये आप अपनी मैनिफेस्टो से देखेंगे कितना फर्क आ रहा है इसमें। फिर Q वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? -1.80 आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इनिशियली देखना है कि दिस इज द मैप, तो इसके अंदर किस तरह का पैटर्न आ रहा है। ये देखिए, ये क्या वैल्यूज आ रही हैं? के वैल्यूज आ रही है। ये क्या वैल्यूज लिखी है इसमें? देखें जो आपकी बोटाई पैटर्न है कि नहीं है। इसका सेफेरिकल या ओवल पैटर्न ही आ रहा है, उस तरह का आ रहा है, सेफेरिकल पैटर्न आ रहा है। लेकिन इसमें ये आपको जो स्टीपर है उसने रेड में बना दिया, जो फ्लैटर है, लेकिन दोनों में फर्क देख लें कितना आ रहा है, जो उसने एवरेज डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने देखना कि एलिवेशन कितनी आ रही है। देखें, ये देखें इतना, हाउ मच इट इज एलिवेटेड फ्रॉम अ बेस्ट फिट स्फीयर। 58 की रीडिंग आ रही है। हमने कितनी निकाली थी? 8 के करीब थी अगर नॉर्मल है। तो दिस इज हाईली, यानी कि अगर ये इधर है तो ये बिल्कुल आगे निकला। दैट मींस कि बेस्ट स्फीयर से इतना आगे निकला हुआ। ये उसका फ्रंट पार्ट इतना आगे निकला हुआ और बैक पार्ट कितना आगे निकला हुआ, वो ये मैंने इंटीरियर चेंबर डेप्थ वाला कर दिया। ये नहीं, उसके 4 मैप ये चेंबर का प्रोफाइल है। इसमें अगला ये बैक एलिवेशन दे रहा है। तो बैक में भी अगर आपका फ्रंट में था उतना, तो इसका बैक में भी 85 आ रहा है। तो इसका पैटर्न किस तरह का आ रहा है? इसमें तो ग्लोबस आ रहा है, बैक वाले में थोड़ा सा टर्न शेप दे रहा है। इसमें देखें कि आपका प्यूपलरी सेंटर कहां पे आ रहा है? ये क्रॉस, दिस इज द प्यूपलरी सेंटर, और ये आपका थिनेस्ट पॉइंट आ रहा है। तो थिनेस्ट पॉइंट और इनमें बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि दिस इज एन एरिया ऑफ केराटोकोनस व्हिच इज लोकलाइज्ड इन दिस एरिया। इसी को आप इसमें डिफरेंट, ये अब बेलन एम्ब्रोसियो पे चले जाते हैं, ये उसी चीज को उसमें ले जाते हैं। ये देखें, ये वैल्यूज दे रहे हैं। ये आपकी फ्रंट एलिवेशन है, ये बैक एलिवेशन है। उसमें 42, 43 और 72, और इसमें अगर बैक पे चले जाते हैं तो वही एनहांस होकर 87 और 144 पे चली गई, ठीक है। ये उसने एक्सक्लूडिंग सेंटर 3 मिलीमीटर, ये उसने रेडियस दिया हुआ। ये बेस्ट फिट स्फीयर का 7.3 और डायमीटर उसका 8 मिलीमीटर है बेस्ट फिट स्फीयर का। और अगर दोनों में डिफरेंस करेंगे तो इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एलिवेशन का, जो अगर आप, तो दैट शोज। और इसका स्पेशल प्रोफाइल देखेंगे तो देखें इसकी पैटर्न थोड़ी सी एस शेप आ रही है। सेंटर में ये शुरू ही 400 से हो रहा है, लेकिन 400 से ड्रॉप कर रहा है। इसमें जो परसेंटेज ऑफ थिकनेस इंक्रीज है वो बहुत रैपिड है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर वन। ये एक पेशेंट आ रहा है, इस पे देखें, इसका क्वालिटी ऑफ स्कैन ठीक है। इसके बाद देखें इसका के मैक्स कितना है? 54 है, और इसका पैकीमेट्री कितनी है? 505 है, और ये वाई एक्सिस पे डेविएटेड नहीं आ रही इसकी, सॉरी थिनेस्ट लोकेशन, सॉरी ये मैंने ये पैकीमेट्री, ये देखना 502 है, और उसकी वाई एक्सिस से कितना गया हुआ? -4 नीचे गया हुआ उसके साथ। क्यू वैल्यू इसकी -0.83 है। एस्टिग्मेटिज्म इसका 1.2 दे रहा है, और इसका एक्सिस 92 पे आ रहा है। इसका पैटर्न किस तरह का आ रहा है? बो टाई, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? एसिमेट्रिकल बो टाई आ रही है। एसिमेट्रिकल में द लोअर पार्ट इज बिगर देन द अपर पार्ट। तो इसमें डिफरेंस आपका आना चाहिए था कोई 1.5 का था, तो फिर आप उसे कह रहे थे ये एबनॉर्मल आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें सरफेस एलिवेशन कितने पे जा रहा है? +18 पे जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन जो ये थिनेस्ट पॉइंट पे आपने देखना है, तो वो आपकी कितने पे जा रहा है? फ्रंट एलिवेशन मैप ये दे रहा है आपने। मैं दूसरी चीज में आपको कह रहा था, देखें जिस वक्त आप एलिवेशन मैप देखते हैं और कर्वेचर मैप देखते हैं,
दोनों में कलर्स देखें ऑपोजिट नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें रेड वर्टिकल है, उसमें वही हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे इनमें ये आपको इसी तरह ही नजर आएगा, क्योंकि जब उसको रीड, ये वैसे ही एज अ रूल है कि जब आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू शो अप लाइक दिस वे इन के अंदर। तो इसमें देखिए बैक एलिवेशन है, ये 32, इसमें बैक का ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फ्रंट देखिए इतना ज्यादा नहीं जा रहा है, इसका 18 जा रहा है, लेकिन बैक बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा जा रहा है। तो इसको पोस्टीरियर कैरेटोकोनस का एलिमेंट ज्यादा आ रहा है उसके साथ, क्योंकि पैकीमेट्री इसकी है लेकिन इसकी 504 पे जा रही है, ठीक है। बल्कि दूसरी कंपेरिजन हम लोग उसमें देखते हैं। इसमें देखिए अगर इसका डिफरेंस आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंटली हाई आ रहा है, 18 पे दे रहा है। ये नॉर्मली ये देखिए अगर सेंटर में वैसे 12 है और अगर उसमें एनहांस पे चले जाते एक्सक्लूडिंग सेंट्रल 3 मिलीमीटर तो फिर वो +30 पे चला जाता। और इसका स्पेशल थिकनेस प्रोफाइल इसका ये भी नॉर्मल रेंज में ही चल रहा है। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज आती है जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, उसमें ये चीजें सारी खुद ही बता देता है। इसमें ये वैल्यूज देता जाएगा, पैकीमेट्री मिनिमम, पैकीमेट्री प्रोग्रेशन, एलिवेशन फ्रंट, पैकीमेट्री एपेक्स, के मैक्स। आपने इनिशियली अगर आपने स्क्रीनिंग के लिए लेना है तो यू कैन एक्चुअली सी ऑल द पैरामीटर्स व्हिच यू वांट डिस्प्लेड एंड व्हिच आर डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मेटिव डाटा के साथ डिस्प्ले हो जाते हैं कि ये अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रे में है और ये उसके बाद टोटल एबनॉर्मल आ रहा है। सो दैट इज आई यूज दिस फास्ट स्क्रीनिंग क्वाइट अ लॉट। और उसमें ये बेलेन एम्ब्रोसियो के बेसिस के ऊपर 5.6 का फैक्टर बता रहा है केराटोकोनस, और ये टोपोग्राफिक केराटोकोनस स्टेजिंग बता रहा है, और साथ इसके अंदर ये उसकी कैटरेक्ट की ग्रेडिंग बता रहा है साथ जो बीएनएस है इसका। ये चीजें वो सारी इसमें बाकी ये डेंसोमेट्री भी आता है। अगर डेंसोमेट्री की आपने उसकी बताया हो कि डेंसिटी क्या आ रही है कॉर्निंग के उस एरिया का। ये इसका क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम है। इसका देखिए क्वालिटी इसकी नॉर्मल आ रही है। इसका आपकी के मैक्स कितना पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है। थिकनेस इसकी 450 पे आ रही है, और ये इसकी डेविएशन 0.4 पे जा रही है। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म दे रहा है इसका 51 पे और 0.8 पे दे रहा है। इसमें इशू आ रहा है कितना दे रहा है, लेकिन ये आपकी रीडिंग आ रही है। इसमें देखिए क्या पैटर्न आ रहा है, तो बोट आई नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ज्यादा आपका ग्लोबुलर पैटर्न ही आ रहा है। उसमें थोड़ा सा ये हार्ट शेप्स आ रहा है, लेकिन इसमें जो ज्यादा चीज नजर आ रही है येलोइश एरिया है। एंड टिपिकली केराटोकोनस में इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इंफ्रो टेम्परली डिस्प्लेस्ड होगा। इसमें एलिवेशन मैप पे ये आपको टिपिकल टंग शेप नजर आएगी, लेकिन अगर आपने एलिवेशन में देखें +25 की फिगर देखिए, 15 से ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब दिस इज एबनॉर्मल। और पोस्टीरियर इसकी उससे भी ज्यादा 55 है, ठीक है। अगर आपको इनिशियली ये देख के शेप देख के केराटोकोनस का नहीं भी पता लग रहा, तो एलिवेशन की वैल्यू से आपको फौरन पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, केराटोकोनस का इशू आ रहा है। और फिर आपने उसका पैकीमेट्री का प्रोफाइल देखना है। इसमें कंसेंट्रिक सर्कल जा रहे हैं, बट दिस concentric circles are moved downwards and outward, which is significant in keratoconus. ये इसमें जा रहे हैं। और इसी का नाम देखते हैं जी। Sir, in few scans we can see keratoconus probability index. हाँ आ रहा है। अच्छा वो नहीं मैंने देखा, वो है वो, सॉरी वो मैंने केराटोकोनस का मैप नहीं दिखाया, वो अलग मैप है जो केराटोकोनस का मैप है। बेलेन एम्ब्रोसियो अलग है, फास्ट स्क्रीनिंग अलग है, टोपोग्राफी, हाँ ये
This is actually showing you the indices for index surface variation. ठीक है? Index of vertical asymmetry keratoconus index 1.07 है, ये central keratoconus index, ये inferior index of height asymmetry है, height decentration है. इसमें कई figures इसकी normal में आ रही हैं, कई नहीं आ रही हैं उसके हिसाब से. Border line पे चलता है. Let's see इसी की दूसरी आई देखो उसमें क्या. ये फास्ट स्कैन करते हैं. इसमें इस लेफ्ट आई में आप देखेंगे इसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है. उसमें केराटोकोनस टोपोग्राफिक केराटोकोनस स्टेजिंग उसने ग्रेड 2 में ले गया. ग्रेड 2 में आईएसवी अगर आपकी 77 है और ये रेड में देना शुरू कर देता है, दैट टेल्स यू ये केराटोकोनस ग्रेडिंग बता रहा है सारे इसके अंदर. ये केराटोकोनस वालों में आना शुरू होता है. अगर नॉर्मल लेंगे तो ये इसमें आ रहा है, ये सिमेट्रिक बोट आई आ रहा है इसका 46, 44. ठीक है. इसमें ये वैल्यूज इसकी सबसे पहले Q वैल्यू ओके आ रही है. इसकी K मैक्स देखें 46 है, थोड़ी हायर साइड पे फिर भी ठीक है. इसकी थिनेस्ट लोकेशन पे पैकेटमेट्री 541 है, वो भी ठीक है, 4.38 आ गया. स्टिग्मेटिज्म 0.4 का. लेकिन आपने देखा कि केराटोकोनस भी आ रहा था, स्टिग्मेटिज्म को इतना अच्छा मार्कर नहीं आ रहा बताने का आपका उसके ऊपर जो टोपोग्राफिक के ऊपर. लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो ज्यादा देखें एलिवेशन. ये तो वैल्यूज आ ही रही है, लेकिन अगर आप एलिवेशन देख लें ये तो देखते ही लगता है कि नॉर्मल है. +1 दे रहा है, तो इसका मतलब जहां वो 15, 16, 18 पे जाना शुरू, उससे ज्यादा जाना शुरू है तो आपको फौरन पता लग जाता है कि ये वैल्यूज एबनॉर्मल आ रही हैं. और इसमें ये भी कंसेंट्रिक पैटर्न आ रहा है और ये थिनेस्ट एरिया उसके बिल्कुल करीब है. जो सेंट्रल जो थिनेस्ट एरिया अगर उसका कंसेंट्रिक एरिया देखें तो दैट इज इन द प्यूपिलरी सेंटर. ये जो डॉटेड एरिया नॉर्मली केराटोकोनस में ये इधर पहुंच जाता है. ठीक है. तो ये इधर ही है और वो 550 उस रेंज में आ रहा है. ठीक है. तो ये नॉर्मल. इसके बाद लास्ट में इसमें आपको शाइन फ्लो कैमरे का कुछ समझ आती क्या चीज है? शाइन फ्लो कैमरा का मैं इसमें देखा था. ये वीडियो है शाइन फ्लो कैमरा. माइक यहाँ. ये शाइन फ्लो कैमरेज की जो फिलॉसफी है, जो उसके प्रिंसिपल है, वो इस वीडियो से आप ये समझ आ रही है आपको कि नॉर्मली जब पिक्चर खींचते हैं ये भी चीज सीधी होती है और ये कैमरे की फिल्म भी सीधी पड़ी होती है. ऐसे ही है ना. लेकिन अगर कैमरा ऐसे है, कैमरे की फिल्म ऐसे है और ऑब्जेक्ट को ऐसा टेढ़ा कर दे तो क्या होता है? ये कहीं से साफ नजर आएगा, कहीं से टेढ़ा नजर आएगा. तो इसी में ये शाइन फ्लो का प्रिंसिपल इस्तेमाल करके शाइन फ्लो कैमरे का इसमें जो उसका पॉइंट फोकस है वो पीछे करते हैं. तो दैट इज हाउ कि कॉर्निया की आप पिक्चर भी खींचते हैं लेकिन उसके प्लेन्स डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो पिक्चर कम्स क्लियर. अब इसका वो दिखाता है. ये आएगा उस तरह अगर आपकी प्लेन टेढ़ी है. ये आपकी प्लेन ऑफ फोकस आ रही है. 1888 में ये प्रिंसिपल वाज डिस्क्राइब्ड. बेसिक मकसद उसका ये था कि फोटोग्राफ्स के अंदर कोई एरिया अगर ब्लर्ड आए उसको यूनिफॉर्म बनाना.
बता रहा कि surface is not flat. In the Scheinfeld camera, a monochromic blue LED light with a wavelength of 475 nanometers is used as a slit illumination system. The light source located along the image plane passes through transparent media in the eye. Measurements taken from a camera along the plane of focus measures differences in brightness. Any difference in brightness indicates the opacity of an antenna segment. Unfortunately, lamplight imaging does not image the iridocorneal angle Verify कर रही है. as the blue light scatters at the ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਨਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕੁਝ उसमें basically main thing was the Scheinfeld camera is going to be आपका कॉर्निया चूंकि spherical है तो it is not coming as one plane, तो इसमें आपकी film और this at a different plane, तो जहाँ पे उसका line of intersection that is the Scheinfeld plane. So इसके different contrast generate होते हैं, उससे it tends to calculate a sharp image all around. लेकिन Scheinfeld camera में it goes up to this area, but जहाँ पे iridocorneal contact है वहाँ पे वो Scheinfeld images इतने clear नहीं आते उसको. So how does it take इसमें So the Scheinfeld camera rotates all around vertically. इस तरह rotate करेगा. There is a camera और इसके coaxial there is a slit source of light. Go around and take about 50 pictures. ठीक है, तो वो 50 pictures आप बाद में analyze कर लेते हैं जिससे आपकी anterior और posterior elevation आपकी नजर आ रही है. ठीक है. So I think that is basically a brief introduction of corneal topography. There is much more which can be said. Thank you for the invitation to speak here. It's a pleasure to be here. Any questions? I don't think there will be any questions. How important is topography before prescribing gas permeable hard lens to most patients? How important is topography? Because topography is going to decide what type of base curve you are going to prescribe for your patient. कर्वेचर उसका आ जाएगा आपको पता लग जाएगा उसका एपेक्स डिसेंटर्ड कितना है, तो आपने उसके हिसाब से अपना कॉन्टैक्ट लेंस जो उसके ऊपर प्लेस करना है उसकी चीजें आ जाएंगी सारी. KMax, can we precisely get the axis of the KMax? K-max एस्टिग्मेटिज्म का एक्सिस है वो बता रहा है, लेकिन वो इतना को बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं बता रहा आपको. लेकिन व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग अगर उससे आप देख लें तो इसमें आपको जो चीज आप कह रहे हैं वो आइडिया इससे होता जाता है आपको जो इसकी चीजें आती हैं ना. मोइन साहब आपको हम एक दफा जहमत फिर देंगे कुछ अर्से के बाद, वो उसमें हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉर्नियल टोपोग्राफी आज तो इन्होंने फंडामेंटल्स बताई, ये आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये सिर्फ एक पार्ट है आँख का और उसकी साइंस की डेप्थ आप एनालाइज करें. आज मुझे भी मैं टोपोग्राफी बहुत सालों से देख भी रहा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंटरप्रेट भी कर लेता हूँ और उसकी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट्स भी देता हूँ पेशेंट्स को. लेकिन देयर वर मेनी थिंग्स विच आई फाउंड न्यू फॉर माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो अब आज तो ये फंडामेंटल आपने सुना इनसे कि K-max क्या चीज़ है, QS क्या चीज़ है, फलानी, ये पूरी टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज है जिसको सीखना पड़ेगा अगर इसको हमने कॉर्निया को समझना. पूरी एक दुनिया है. नेक्स्ट हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़रा रिलेट करें ट्रीटमेंट्स के साथ. फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे इलाज राजपूत साहब का सवाल है कि जी कितनी इंपॉर्टेंट है रिजिड गैप्स परमिएबल लेंस लगाने में या केराटोकोनस की जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, कब कब करवाना चाहिए, अगर क्रॉस लिंकिंग की है तो उसके बाद फॉलोअप का पैटर्न क्या होना चाहिए, टोपोग्राफी कब रिपीट हो और रीट्रीट पेशेंट कब हो, इसी तरह किस पेशेंट में रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जाए किस में ना की जाए, कहाँ पे बोट आई क्या पोजीशन हो, तो उसमें मतलब ये जो सारी हमने वैल्यूज़ आज सीखी हैं इन वैल्यूज़ को हम क्लिनिकली किस तरह से यूज़ करें, इसके ऊपर आप जो है ना कुछ अर्से के बाद आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमें आप बताइएगा ताकि हमारे सारे स्टाफ को जो और लोगों को जो आ रहे हैं हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं
Dr. जी सर, Mike, जी। thank you very much for the concise and basic topography you presented. I have two small questions. Number one, nowadays recently FDA approved this topographic guided LASIK. Clinically, what is the difference between wavefront guided and topography guided? Theoretically, I know topography is a topo analyzer that takes 2200 points from the surface, while wavefront it takes 200 points. But what is the clinical difference? I mean, in respect to the results, outcomes of this topography guided and wavefront guided? But basically, personally, I don't have an experience of using wavefront guided and topographic guided, but what they say is, जो आपकी higher order या lower order aberrations है, you can identify those in wavefront guided topography और patient को post op halos या जिस तरह higher order aberrations को generate होती है वो उसमें कम होंगी उसके साथ. लेकिन practically, when we do topography guided LASIK, we make a flap, maybe 100 micron. These irregularities are from the surface. How deep irregularities or higher order aberrations go deep, because we are ablating in the bed after the flaps. So these go so deep. तो वो लेकिन wavefront में तो बता देगा, क्योंकि wavefront तो पूरी गुजर जाती है ना कॉर्निया में से, उसमें वो higher order aberration generate कर ले, लेकिन topography में वो कई चीजें मुश्किल, surface पे curvature में नहीं आएंगी वो चीजें, या elevation में इतनी नहीं आएगी. आप यही कह रहे हैं ना, कॉर्निया बीच में से काटा है आपने, तो वो कैसे पता लगेगा? जब उसमें से एक वेव गुजरती है, वो वेव किस तरह उससे डिस्टॉर्ट होती है, दैट इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी बेटर शोन इन wavefront guide. Yeah, I mean, it's not better the topography guided. Maybe the PRK is better outcome. I think corneal refractive surgery is evolving so much that we don't know exactly कौन किधर जा रहा है, but there's a race going on to get to the best. अभी भी जो machine topographic guided भी जो हम कर रहे हैं, they're producing pretty reasonable results. पहले तो इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत अच्छे आ रहे हैं. अच्छा, मैं आपसे एक आपसे सवाल पूछूं कि ये बताइए, हम सब लोग aspheric lenses डाल रहे हैं, ठीक है, और hydrophobic aspheric lenses are considered the best of the line that is available. But do we ever check asphericity of the cornea or the lens before inserting that lens? Because that asphericity is a fixed value. हर IOL की जो asphericity उन्होंने उसके अंदर create कर दी है, वो tailor made to the patient नहीं है, वो एक जनरल है. अब उस patient की टोपोग्राफी करके या उसके कॉर्निया के कर्वेचर को स्टडी करके एस्फेरिसिटी कैलकुलेट करके उसके हिसाब से इंट्राओकुलर लेंस डाला जाए, क्या आज दुनिया में ये पॉसिबल है? अभी तक तो नहीं है. अभी तक तो नहीं है कि एक एक पेशेंट के हिसाब से एक लेंस डिजाइन हो और एग्जैक्टली वो उसके हिसाब से, वो जो कहते हैं कि इंट्राओकुलर इंट्राजेल लेंस जो कभी शायद क्रिएट होगा कि आप बैग निकाल लेते हैं और बैग के अंदर एक ऐसा जेल आप इंजेक्ट करेंगे जो सॉलिड होकर लेंस बन जाएगा और उसकी एग्जैक्टली वही पावर दे देगा और वही कंटूर दे देगा जो उसके लेंस का ओरिजिनली था. लेकिन कॉर्निया को क्या करेंगे आप? अगर आप इंट्राजेल लेंस बना भी लेंगे फर्स्ट, तो कॉर्निया के कर्वेचर को क्या करेंगे? फिर कॉर्निया के कर्वेचर की आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके उसको प्लेनो करें, उसके स्पेसिफिक को करें. We are struggling to reach to that level which the nature has given to the mankind. इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करे और देखे और वहां तक पहुंचे जो कुदरत के काम है. लेकिन वो जहां पहुंचते उसे पता लगता है कि वो बहुत पीछे है, फिर वो और आगे जाता है, फिर और आगे जाता है. लेकिन कुदरत के तो खजाने अनमोल हैं और वो अनलिमिटलेस है, कहाँ तक इंसान शायद कभी भी ना पहुंच सके. तो बहरहाल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड मोइन एंड वेरी गुड कोलीग टू अस. ही इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड. जब भी इनको जहमत देते हैं, बुलाते हैं, हमेशा ये इल्म की जुस्तजू और इनको फैलाने के लिए ये इनसे बेहतर और कोई हमें नहीं मिलता. Anyway, thank you very much, Moin, for sparing so much of your valuable time, and also grateful to Zakir साहब, लोधी साहब, अकरम साहब, नईम खालिद साहब, तो हमारे रेगुलर, तो सारे रेगुलर हो गए माशा. इमरान, thank you very much for sparing time and coming and joining. क्योंकि आप लोगों के आने से, सवाल पूछने से हमारे जूनियर्स को बहुत फायदा होता है. इलियास राजपूत साहब आज इंडस्ट्री की तरफ से भी नुमाइंदे के तौर पे आए हैं, प्लस वो क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके इंटरेस्ट का टॉपिक था. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बाय डॉक्टर कासिम लतीफ चौधरी ऑन इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी. तो वो इसी के साथ रेलेवेंट है और वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे. तो यू आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट. हम अगली दफ़ा कुर्सियाँ और लगवाएंगे क्योंकि कुर्सियाँ थोड़ी हो गई आज. तो कोई और सवाल जी प्लीज. सर इसकी कोई सिंप्लीफाइड बुक तो समझने के लिए बहुत सिंपली कायदा
यही जो प्रेजेंटेशन ये नेट पे है, अगर उसको यही बुक पढ़ लीजिए। इनिशियली बेसिक चीजें तो आपने इस पिछले पहले मैंने दिखाई है, फिर आपको 4-5 उसके बाद टोपोग्राफी दिखाई है, फिर आपने पिक करना शुरू कर दी है ना उसको। तो वो चीज यही है कि पहले मैं भी इसी तरह इनिशियली देख, मेरे पास तो चूंकि मशीन है तो मैं उसको करता रहता हूँ बैठ के, रोज आती है रोज देखते रहते, तो उससे यू गेट एन आइडिया कि जब इनिशियली मशीन आई थी तो कुछ समझ नहीं आती थी ये क्या चीजें बोल रहा है और क्या दिखा रहा है उसके हिसाब से, तो कुडंट टेल। तो बेसिक एक्सपीरियंस अगर आई थिंक इस समझने के बाद इफ यू गो एंड डाउनलोड हर रोज के 4-5 अगर आप तो